Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. I am from JVM school. I will teach you SST subject of class 7 and will begin by the chapter first. The chapter first is the medieval world. medieval world एक हिस्ट्री है जो कि medieval पीरियड के बारे में बताती है. As you already discussed in your class 6th about what is history and what are the aspects of the history. In this first chapter, we will learn about the medieval world, medieval period. History, as you know, is the study of past event from the time human beings slowly began his journey towards civilization. History is divided into three major periods, that is ancient, medieval and modern. Each of these periods varies from country to country and has no definite date of its beginning of end. In Europe, the medieval period is said to have begun around 5th century and ends in the 16th century CE. हिस्ट्री जो है वो सभी देशों की थोड़ी अलग अलग चलती है. अगर मैं मिडिवल पीरियड की बात करूं तो मिडिवल पीरियड यूरोप में 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी CE तक था. इंडिया में यही 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक रहा. So let's start the chapter. The history of the world can be divided into three broad periods: ancient, medieval and modern. History जो है तीन periods में divided है, एक ancient, medieval, then modern. Each of this period covers many centuries and the length of a period may differ from one part of the world to another. For example, the medieval period began around the 5th century in Europe. जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो पीरियड है, पीरियडाइजेशन हर एक कंट्री टू कंट्री डिफर करती है. जैसे कि यूरोप में जो मिडिवल पीरियड का स्टार्ट है वो 5th सेंचुरी से हुआ, बट इंडिया में 8th सेंचुरी से हुआ, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है. द मिडिवल पीरियड इन इंडिया स्पेन अ मिलेनियम फ्रॉम 8th to 18th century CE. Many development during this period distinguish it from the previous period, that is the ancient period. Major political development. For the sake of convenience and better understanding of the changes in the society, economy, politics, religion and culture during this century, the medieval period is further subdivided into early medieval period and late medieval period. जो medieval period है उसके अंदर एक better understanding हम बोल सकते हैं. धीरे धीरे चीज़ें न्यूली चालू हो गई थी, इन्वेंशंस थोड़े बढ़ गए थे एज कम्पेयर टू एंशियंट पीरियड. और मिडिवल पीरियड जो है वो दो पीरियड में डिवाइडेड है, एक अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड. अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि कब से चालू होता है, 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ. देन दी पालास, दी प्रतिहारा, दी राष्ट्रकूटा, दी चोलास, राजपूतास वर दी पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड. दी लेट मिडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम दी 13th to 18th सेंचुरी. जो लेट मिडिवल पीरियड है वो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक लास्ट करता है. इट कवर्स द रूल ऑफ टर्क्स, द अफगान्स एंड मुगल्स. जो लेट मिडिवल पीरियड है वो टर्क्स और अफगान्स और मुगल्स के रूल को कवर करता है. इन्होंने इस समय में रूल करा है, राज करा है. इन द लेट मिडिवल पीरियड देयर वर अ नंबर ऑफ invasion by Muslim conquerors from Central Asia. Among the invaders were the Turks, the Afghans and the Mughals. Under their rule, Islamic custom influenced political, economical, social and cultural life in India. This led to growth of a unique Indo-Islamic culture. Towards the end of the 15th century के end में यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो ट्रेड करने लग गए थे डायरेक्टली इंडिया से ओवरसीज़. पोर्तुगीज़ जो थे वो फर्स्टली उन्होंने यहाँ आए थे और इंग्लिश के बाद उनके बाद इंग्लिश ब्रिटिशर्स आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए ट्रेड करने के लिए. बाय द मिड 17th century द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर द मेन राइवल ट्रेडिंग पावर्स इन इंडिया. यू विल स्टडी दिस लेटर इन योर 8-9 हिस्ट्री और वी कैन से सोशल साइंस. You will learn that how the different parts of foreign countries took over and ruled over the India. By the mid 18th century, the English outstayed the French, became a leading political force in India. This marked the beginning of modern period in India.
इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफी क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ज्योग्राफिकल जो रीज़न है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में। इन दिस जो ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं जैसे मैप हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हिस्ट्री को बनाने में, क्रिएट करने में। जैसे मैप्स के माध्यम से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कौन से एरियाज़ में कौन सी डायनेस्टीज़ ने रूल करा है, कौन से किंग्स ने रूल करा है, और हमारा पहले कैसा मैप था। तो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री को क्रिएट करने में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टोग्राफी इन मिडिवल इंडिया। कार्टोग्राफी, द स्किल ऑफ कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग वॉज प्रैक्टिकली अननोन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट पीरियड जो था उसमें कार्टोग्राफी नाम से कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। कार्टोग्राफी बेसिकली मैप मेकिंग होता है, जो मैप बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपांशन ऑफ empires during the medieval period created the need for accurate maps. The Arabs and the Europeans who undertook long journeys over land and sea developed cartography. The contacts with the Arabs and European introduced India with cartography. जो अरब्स थे, जो यूरोपियंस थे, उन्होंने ये कार्टोग्राफी वो लाए थे और वो मैप्स के द्वारा वो ट्रेड करते थे, वो मैप बनाते थे। द मैप शोन is a map of the world has was drawn in 12th century by Al-Idrisi, a cartographer for Morocco. ये जो आप ये मैप जो देख सकते हैं, आप अपने कॉपी में भी देख सकते हैं, ये मैप वर्ल्ड का मैप है जो ड्रॉ करा था अल-इल्द्रिसी, एक कार्टोग्राफर थे मोरक्को के। द मैप हैज़ द साउथ शोन एट द टॉप। मैप में साउथ जो है वो टॉप में शो कर रखा है। इज़ एट द सेंटर, Arabia is the center, and to the left of Arabia is India. Above South India is an island which is possibly Sri Lanka. Below Arabia, ये आप पढ़ सकते हैं और इस मैप को आप देख सकते हैं कि 12th सेंचुरी में ये मैप बना था, बहुत ही पहले। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेसेस नेम्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। मिडिवल पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कीपिंग रिकॉर्ड्स कैसे कीप करते थे और क्या क्या प्लेसेस के नेम्स थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर once at your home. Thank you so much, students.